Okay, so for final we have to make our first year. You have chosen pre-medical, and today is being our first class of pre-medical biology. Okay, so that is the thing which we're gonna have to start our first year pre-medical biology. The class we're gonna have to start. Okay, now if I'm asking you to biology, what do we mean by that word biology? So inform me on your chat box whether you are getting my voice and video clear. So just inform me, what do you understand by the term that is called biology? Okay. One more students are allowed to come. Okay. Yes, Saha, I want you to explain me what is biology actually, by the way. What do you know about that term? You have taken this as a major subject to go on to the medical field. So just inform me, class, that you're gonna have to stop your video. मैं आपके वीडियो स्टॉप कर दिए. अच्छा, yes class, you're gonna have to inform me with what do we mean study of life. That's very great. Taha, you gave me the answer, study of life. Haya, you can inform me as well on your chat box that whether you are getting my voice and video clear. आज ऐसा पहले आप लोगों को थोड़ा सा जूम पे इंटरेक्टिव में थोड़ा सा अच्छा हो जाए. तो Haya, would you like to inform me that whether you are getting my voice and video clear? So you can inform me on your chat box, and it could be open by pressing Enter H button. Enter H button दबाओगे आपका chat box आपके पास open up हो जाएगा. तो in this way you can inform me that whether you are getting my voice and video clear or not. So if you want to make it on a mic, अगर आपने mic में भी बोलना चाहो, so nothing hurdle for me. Mic में भी आप बोल सकते हो, inform कर सकते हो. I will proceed. I will send you some videos regarding about for the second year as well, जिसमें आप देख सकते हो कि student मुझसे किस तरह से connected रहते हैं. Okay, so Ta, you give me the very great answer. Study of life. Now I want to make my question. Now I put this question. Okay, class, biology. What did I tell to my student? What is it? What it can be? The word biology derived from a Greek word, and the word bio meant to be as for life, and the word logy meant to be as for study. So class, here we have the word that is called biology. Bio means life, logy means study. It's a study of life. That's a very great answer which I got from Taha. Now I'm asking you to the very next question to one of my students, Sayyida Rahia Ali. Would you inform me that what do we mean by the word life? Anyone want to explain me what is life according to you? Life का मतलब क्या हो सकता है? Anyone want to say it on mic, so they can also say it. या कोई मुझे चैट बॉक्स में बताना चाहता है तो वो भी बताए. What do we mean by the word life? Life किसको कह सकते हो? What is it? I am waiting for your response, class. मुझे क्लास में response लाजमी चाहिए ताकि I have to ensure that whether you are being lively over here, ताकि आप लोग यहाँ पे lively हो, मेरी आवाज़ आप लोगों को clear हो रही है. I want to ask you that what do we mean by the word life? Who possesses life? किसके पास life मौजूद होती है? That's a certain bit very easy question which I have to start my subject, which I have to start your initial subject to go on to the medical field. Yes, class. So Taha informed me that what is biology. He says that it is a study of life. Now my second question comes to all of you, that class, what do we mean by the word life? What it can be? Anyone from you, anyone who can inform me, so they can inform me onto the chat box. आप लोग chat box में inform कर सकते हो. But be quick, or if you have no idea about it, so you can inform. You can have to say no, so I can proceed. तो जब तक आप लोग अपना chat box use करना नहीं सीखोगे, it would be really difficult for me as well as you to conduct the class. So if you have no idea, so just say it no. Or if you don't want to give any of the answer, so you just have to say no. But let me ensure that each and everybody would be present into the class और उसको मेरी आवाज आ रही है. So please beta inform me onto the chat. Yes, Taha, I would like to explain. I would like you to explain. या अगर नहीं पता तो मुझे no का आंसर करो. But I cannot make my
class in this way कि मुझे कोई respond ना मिले? Yes, sir. Okay. No, no. Okay, that's it. No, no, no. And what about rest of the students? Being bit lively over here. What about the rest of the students? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पे एक्टिव नजर आ रहा है. What about Haya? What about Nigar Fatma? What about Sayyid Raya Ali? If you have no answer, so you just have to make no. If you have any answer, so you just have to say whatever you want to explain regarding about for life. बेटा काइंडली सेज द वर्ड. अगर आप लोगों को कुछ भी पता है, सो यू कैन हैव टू प्रोसीड. या से मुझे ओके, दैट्स सो वेरी नाइस. कंडीशन गिवन टू लिविंग बीइंग इज कॉल्ड लाइफ. दैट्स वेरी ग्रेट आंसर. हेलो, अच्छा हुआ ना आंसर आना शुरू हुए. सो कंडीशन गिवन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड लाइफ. दैट्स अ बिग थिंग. अच्छा निगार फातिमा, वुड यू गेट इन माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, वॉइस और वीडियो क्लियर है, खाली इतना बताओ. एल्टर एज दबा के आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा. तो जब तक हम चैट बॉक्स में थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं होंगे, हम अपनी क्लास को आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे. Sayyid Ali give me the very great answer that condition given to living being is called life. Okay. So what did I have to explain regarding about for life? अगर मैं life के बारे में explain करता हूँ, so who possesses life? The life would be possessed by living organism. And what does they gonna have to perform? So they gonna have to perform the basic things. Who possesses life? The life would be possessed by living organism. We don't provide any condition to the living organism. ये चीज याद रखो. Life is a thing which is being possessed by living organism. And when does living organism possesses life? Living organism के पास life कब तक होती है? कब तक होती है? वो कौन सी ऐसी चीज परफॉर्म कर रहा होता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं that it possesses life. So they have to perform the basic thing, just such as I want to explain the 4 basic things or 4 basic mechanism over here. Number 1 is digestion. Next one, that is respiration, excretion, and about last, that is called reproduction. So living organisms have possesses life when it perform the 4 basic things. And what are they? Number 1, if I'm talking about a word, that is digestion, respiration, excretion, and reproduction. So class, that is the 4 basic terms you have studied from the very beginning of science subjects. आपने जब से अपना science subject पढ़ना start किया है, you have studied digestion, you have studied respiration, you have studied reproduction, and you have studied excretion. So you have taken biology to go into the medical field to make sure that you will becoming a doctor, you will become a future doctor. So just tell me about a thing. What do you know about a term that is called digestion? अब जैसे टर्म अपने रुख मोड़ते हैं, तो एक रुख मान लिया. व्हाट वी हैव टू स्टडी बायोलॉजी. ओके, इट्स अ स्टडी ऑफ लाइफ. एंड इफ इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ, तो व्हाट वी कैन से, life would be possessed by living organism which performing the 4 basic things. And what are they? Number 1 is digestion, respiration, reproduction, and excretion. Now I want to participate the students over here and just tell me that what do you know about a word that is called digestion? Any idea regarding about for digestion? Yes, Taha, you are being bit lively over here, and I want to give you a first chance for explaining me. What do you know about a word that is called digestion? Any idea about this word? I want Taha, you have to be explain one of the thing that is called digestion. So if you know any of the thing regarding about for it, just simply मुझे आंसर करो. Answer it in a very simple way. आंसर बहुत simple wordings पे करो, या जो तुम्हें पता है रोमन उर्दू में करना चाहो रोमन उर्दू में करो. What do you know about digestion? Just tell me what is it. So a very basic term which I have to select, that it is the thing when living organism having life, they perform the very basic thing that is called digestion. And now I would want to know that what do you know about a word that is called digestion? Yes, class. So first we have to make the concept clear that what is life, who possesses it. So life possessed by living organism, and living organism are those which can make the 4 basic things. Number 1 is digestion, second one is respiration, excretion, and reproduction. And a very first thing which I want to know about from the class, that is
डाइजेशन और व्हाट इट कैन बी। डाइजेशन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ओके, सही है, राइट। कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू डाइजेस्ट, दैट्स वेरी ग्रेट, बट व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डाइजेस्ट? Capacity of a person to digest, yes, the one who having a very greater stomach, they having a more capacity to digest. But what do we mean by the word digest? अरे डाइजेस्ट का मतलब क्या होना चाहिए राया? ये डाइजेस्ट व्हाट डज इट मीन? ताहा, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डाइजेस्ट? हया, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डाइजेस्ट? ये डाइजेस्ट क्या होता है? यू आर गिविंग मी अ वेरी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स। मुझे बहुत अच्छा एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स मिल रहा है राया। ताहा का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। ताहा, वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म मी व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डाइजेस्ट? सर जो हम खाना खाते हैं तो मतलब कि हाँ हाँ कुछ बिल्कुल। मतलब एनर्जी थोड़ी सी जो मिलती है खाने से और जो बच जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है ना बाद में। अच्छा, बिल्कुल ठीक था। आई कैन मेक योर वर्ड सेकेंड। अब मैं थोड़ी सी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ था। इट्स बीइंग वेरी ग्रेट दैट यू कम ऑन टू द माइक एंड जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट इज डाइजेशन। तो अब आओ यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इट कैन बी, व्हाट वुड बी द डाइजेशन। अच्छा, if anybody asks you that what is digestion, make your answer in a very simple mood. अपना आंसर बहुत ही सिंपल मूड में लेकर आओ। जितना चीज को आसानी से समझोगे उतनी चीजें देर तक याद रहेंगी। ये ब्रेक डाउन है, ये एनर्जी प्रोवाइडर है। व्हाट इज इट? डाइजेशन, आई गिव यू अ वर्ड दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स food into simple form. I just make a one definition over here. When conversion or breakdown of complex food into simple form, that is called digestion. जैसे कि भाई हम खाना खा रहे हैं, why we are eating? To getting energy. अब ये एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? खाना खा रहे हैं, खाने से एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? जब खाना हजम होगा। खाना हजम कैसे होगा? तो when we eat the food, it would be in a complex form. रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, बोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, फल खा रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। इट हैव टू बी कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए कि वो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाए। और ब्लड का काम आप जानते हो, ये तमाम तरह बॉडी पार्ट्स में डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो व्हेन वी ईट द फूड फ्रॉम, वी हैव टू take the food from our mouth, in our mouth, the mouth start to chew it, और ब्रेक कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, फिर वो ईसोफेगस में जा रहा है, ईसोफेगस में स्टमक में आ रहा है। स्टमक में हमारे पास, आओ यहाँ पे जरा सा देखते हैं, स्टमक, ईसोफेगस, क्या क्या रोल होता है, क्या क्या चीजें होती हैं भाई हमारी बॉडी में। लेट्स फिगर इट आउट। So from mouth the food goes into the esophagus, then it comes on to the stomach, and after that it goes into the small intestine, then it goes on to the large intestine. तो आओ यहाँ पे देखते हैं क्लास। ओके, over here the food comes into the esophagus. पहले फूड आ रहा है esophagus में, esophagus के बाद जा रहा है फूड स्टमक में, स्टमक के बाद हमारे पास दो इंटेस्टाइन आती हैं, the one is small intestine and another one would be large intestine. तो that is the elementary canal, ये हमारा elementary canal है जिसमें हमारे पास esophagus एक खाने की नाली है। आपने फूड इनटेक किया, उसके बाद ये फूड, okay, that's a good answer which I get. Capacity of a person to digest breakdown of food into the simple molecule, that's very great. Sayyid Raya Ali, very good answer. तो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है? पहले फूड गया माउथ में, माउथ से टीथ ने इसको च्यू किया, स्लाइवा ने इसको सॉल्युबलाइज किया, फिर यह आ रहा है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक में आया। स्टमक में हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स होते हैं जो फूड पैक करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो फूड को और ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड जाता है हमारे ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में, ताकि वो ब्लड
तमाम तर बॉडी पार्ट्स में फूड को सप्लाई कर दे. सो दैट इज अ वन वर्ड फॉर डाइजेशन के कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म, breakdown of complex food into the simple form. That is called what? Digestion. अब वो simple form में, why the food have to be converted into the simple form? अब तुम लोग फर्स्ट ईयर में आए हो, फर्स्ट ईयर में जोलॉजी में हमारे पास क्वेश्चन आता है रीजनिंग का. क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग का, आपको रीजन देना है. अब यहाँ पे मैंने बताया तुम लोगों को, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये देखो डाइजेशन में डेफिनेशन देख सकते हो. देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इट ऑल बेस्ड ऑन रीजनिंग, it all based on concepts. The one who says कि मेडिकल क्या है, रट्टा लगाना है, ऐसा कहता है कोई? अगर तुम लोग से किसी ने कहा हो मेडिकल में क्या होता है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में रट्टा लगाना होता है, कहाँ ऐसा कहा है किसी ने? मुझे बताना था सब माइक ऑन करके ताकि सुन सकें सब. आई वांट टू ओपन योर माइक, आई वांट टू ओपन योर माइक. हया या फिर सही हया अली, अगर अपना माइक ओपन करो. कोई इस तरह कहता है? Yes, any one of you. जी सर, जी सर. वो क्या कहता जो इंजीनियर के Losers. स्टूडेंट्स होते हैं लूजर्स, वो कहते हैं लूजर्स ना, लूजर्स कहते हैं ना क्या, कि इसको कि ये बस रट्टा लगाना है, बहुत रट्टा मुश्किल लगाना है है. ये और वो. बस अभी आओ तुम्हें बताते हैं कि रट्टा कैसे लगाते हैं और हम बायोलॉजी को किस तरह से पढ़ते हैं कि उसमें रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं होती. तो पहले मैंने डाइजेशन बताया, तो व्हाट इज इट, व्हाट इट कैन बी. It would be the breakdown of complex food into the simple form. अच्छा, one student have joined me, दरिश्मा हैदर. मुझे दरिश्मा हैदर, would you inform me on your chat, या अपना माइक ओपन करके आप मुझे बता सकती हैं कि would you get in my voice and video clear? क्या आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर नजर आ रही है? चलो आप मुझे बता देना चैट पे, अगर आप लोगों को आपको चैट कन्वीनियंट हो आप मुझे चैट में इन्फॉर्म कर देना. ओके Okay, so the thing which I have to make over here, we're gonna have to make our definitions into the reasoning as well. अब digestion का मतलब हमने ये बताया था breakdown of complex food into the simple form. अब यहाँ से मैं एक कंडीशन को जरा सा राउंड अप करता हूँ. मैं तुम लोग से ये पूछना चाह रहा हूँ अब नेक्स्ट कि why the food have to be converted into the simple form. भाई हम जो खाना ले रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होना जरूरी है? डायरेक्ट ब्लड में जाके क्यों नहीं मिलता? हम जो फूड ले रहे हैं वो डायरेक्ट ब्लड में जाके क्यों नहीं मिलता? अब आपसे अगर ये क्वेश्चन है डाइजेशन, यू ऑल नो वेरी वेल, नाउ यू नो ऑल वेरी वेल दैट व्हाट इज डाइजेशन. इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म. डाइजेशन क्या है? खाना हजम होना. खाना हजम होना मतलब कि भाई खाने के पीसेस इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएं कि वो ब्लड में जाकर मिक्स हो सके, ताकि ब्लड उनको तमाम तर बॉडी पे पहुंचा सके. तो वी कैन मेक द डेफिनेशन ओवर हियर, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म. व्हाई इनटू द सिंपल फॉर्म? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि व्हाई द फूड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म. ये फूड सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होना है भाई? अच्छा, ताहा ने पहले एक मुझे बड़ा अच्छा सा आंसर कोट करने की कोशिश की थी. सर हम खाना खाते हैं ताकि जो हम खाना खाएं उससे हमें एनर्जी मिले और जो बाकी है वो वेस्ट के फॉर्म में निकल जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से. तो ये एक मुझे अच्छा आंसर मिला था ताहा की तरफ से कि टू मिक्स इजीली विद ब्लड. व्हाई टू मिक्स इजीली विद ब्लड? अब ये देखो, ब्लड में इजीली मिक्स होगा, ब्लड तमाम तर बॉडी पार्ट में लेके जा सकेगा. The thing which can be easily mixed with the blood, it would be easier for the blood to transport it to the rest part of the body. अगर जो चीज ब्लड में सही तरीके से मिक्स होगी तभी ब्लड तमाम तरह रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो फूड लेके जा सकेगा. सो व्हाई द फूड हैव टू बी सिंपल? A very good answer which I get it from one of my very best student, Taha, that when the food is converted into the simple form, that it can easily mix with the blood, so that the blood can easily transport it to rest part of the body. But the thing we get over here कि एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी तो मिल नहीं रही. एनर्जी कैसे मिलेगी? हम जो खाना खा रहे हैं हमें उससे क्या मिलनी चाहिए? एनर्जी मिलनी चाहिए. तो देखो, when we ate the food comes in our mouth, then it goes into the alimentary canal. That's what I draw over here.
एलिमेंट्री कैनाल के बाद स्टमक में आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में जाएगा, ब्लड इसको तमाम तरह बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा ताकि each and every part of the body get the food and from that simple food they can produce the energy, ताकि वो सिंपल पार्ट वो तमाम तरह बॉडी पार्ट्स लें और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करें. अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? लेट्स स्टार्ट इट. वन नेक्स्ट टॉपिक विच आई हैव टू मेक ओवर हियर, दैट इज यू कैन सी इट ओवर हियर. मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ. अब मुझे इसका तुम लोग जरा सा बताओ दैट व्हाट डू यू नो अबाउट फॉर दिस टर्म. We know about a word that is called digestion. हमने digestion का पता चल चुका है कि digestion क्या है? Conversion of complex food into the simple form. Now I jump on to my next topic. मैं अपनी next definition पे jump up कर रहा हूँ. And what does it mean? That mean for respiration. So class, that is a certain term which you have studied from your beginning of the classes when you have started to study science. जब आपने science study करना शुरू की तब से आप ये topic पढ़ रहे हो. और अब मुझे तुम लोग थोड़ा सा आइडिया दो. व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टर्म व्हिच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन? यस क्लास. दर्शना हैदर, आई वुड लाइक यू टू मेक और कम ऑन टू द माइक. या तो अपने माइक में आना चाहो तो बताओ. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब मैं सैयदा राया अली तुमसे ये पूछना चाहूंगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डजंट कॉल्ड ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क हो गया? हया, तुमसे मेरा सवाल है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस डजंट कॉल ब्रीदिंग, सो देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग? अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से गैसेस की होती है? राया, यू गिव मी द आंसर. नाउ यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड. अब मैं तुम बाकियों से पूछना चाह रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सी गैसेस होती है भाई? कौन सी गैस अंदर आती, कौन सी गैस बाहर जाती है? ताहा, दर्शना और हया. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है. क्यों अंदर आती है? ऑक्सीजन क्यों अंदर आनी चाहिए? मतलब तुम लोग बोलो. मतलब हम ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी होती है. नहीं 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 नहीं, ये जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. ये जवाब मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछूंगा कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए, वो भी बोलेगा जिंदा रहने के लिए. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. हाँ जरूरी तो है. व्हाट यू आर, वो कहाँ क्या हो तुम, या बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ क्या? अच्छा, Sayyida Raya Ali give me the very great answer. Exchange of gases, that is called respiration, and exchange of gases due to which energy is released, that is called respiration. So a very basic thing which you want to add in this definition, जो बहुत ही की रोल प्ले करना था respiration की definition में, I got the answer. कि ये वो डेफिनेशन है कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज होती है. अ वेरी गुड आंसर व्हिच आई गेट इट फ्रॉम द सैयदा राया अली. देखो, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है. मैं बच्चों से पूछता हूँ, भाई व्हाई वी टेक ऑक्सीजन, व्हाई वी गिव अवे कार्बन डाइऑक्साइड? हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज करते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकते? व्हाट डज ऑक्सीजन डू इन आवर बॉडी? नाउ दैट्स माय सेकंड क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन, तुम लोगों ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया मुझे, सब ने, ताहा ने, राया ने, कि रेस्पिरेशन इट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. रेस्पिरेशन में हमारे पास अंदर ऑक्सीजन आती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. क्यों जरूरी है? आई वांट टू मेक दिस आंसर. व्हाई, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? ऑक्सीजन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? How does it play its role? What is the role of oxygen? Why we cannot intake of carbon dioxide and does not give away oxygen? तुम लोग से कोई भी सवाल पूछ सकता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? तो ये सवाल, ये जवाब नहीं देना. सांस लेने के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी है, जिंदगी मिलती है, अगर ये ना हो तो जिंदगी ना हो. That's all the answer which is a general answer. That is not the biological answer. That's not a medical answer. I want to be ensure you the medical answer or to the biological answer. Oxygen is needed to burn the food. That's real very great. Oxygen do what? It burn the food, it oxidize the food, it break down the food. So let's see it over here about the part that is called respiration. So let's see it. We can make the term respiration and I put forward you over here to the definition, to the equation. अब मैं इसको equation base से थोड़ा सा explain करने की कोशिश करूँगा. So let's see it over here.
C6H12O6. Now what is that thing? ये क्या है जो मैंने बनाया C6H12O6? Does anybody want to make the answer of this? ये क्या हो सकता है? Okay, so that is glucose, which I write over here as a simple food. Acha, so that is glucose, which I write over here as a simple food. Why I write it as a simple food? क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जो हमारे पास फूड, जो हमने फूड इनटेक किया वो कॉम्प्लेक्स था, डाइजेशन के जरिए वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आया, सिंपल फॉर्म से वो ब्लड में डिसॉल्व हुआ और ब्लड ने उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया. नाउ ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट गेट्स द फूड, दैट इज द सिंपल फूड विच यू कॉल ग्लूकोज. फूड को इस फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी था, दैट इज द सिंपल फूड विच यू कॉल ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. क्यों? क्योंकि इसी को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा. इसको कौन ब्रेक डाउन करेगा? C6H12O6 प्लस व्हाट इज दैट? दैट इज ऑक्सीजन. एंड दैट ऑक्सीजन डू व्हाट? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करेगा. इन अदर वर्ड्स आई हैव टू से दैट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड. वी टेक ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं? हम ऑक्सीजन इसलिए ले रहे हैं कि हम फूड को ब्रेक डाउन कर सकें. कौन से फूड को ब्रेक डाउन कर सकें? वी कैन ब्रेक डाउन द सिंपल फूड. व्हाई वी कैन ब्रेक डाउन द सिंपल फूड? तो क्लास ये देखो, C6H12O6 plus O2. When oxygen comes in, it break down the food by which it produces carbon dioxide. That is nothing required for the body, so it have to be exhale out. ये बॉडी को चाहिए नहीं होता, ये बॉडी से बाहर चला जाता है. एंड एट लास्ट द थिंग विच प्रोड्यूस वाटर, and the last thing which have to be produced, that is called what? That is called energy. So Sayyid Ali, I make your answer in a equation form. मैंने तुम्हारा आंसर इक्वेशन फॉर्म में लेकर आया. That respiration is an exchange of gases in which we intake oxygen, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं अंदर? Why we intake oxygen? In order to burn the food, according to you, in order to oxidize the food, according to me, or in order to break down the food, to everyone. मतलब हर बात सेम है. बर्निंग द फूड, ऑक्सीडाइज ऑफ फूड या ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड. ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. अवर बॉडी डज नॉट वांट कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी रिलीज आउट. Our body require water, water require होता है metabolic pathway में, and from this respiration we get energy. So the very two basic term which we have studied in our class yet right now, that is digestion and respiration. Digestion क्या है? Conversion of complex food into the simple form. Why the food have to be converted into the simple form? That oxygen can easily burn that food, oxygen can easily oxidize that food, and the thing we get, that is what we get, energy. So you can link the two things, that what is digestion and what is respiration actually, by the way, and that is the term you have studied before on your classes as well. ये तुम लोग अपनी classes में पहले पढ़ चुके हो, but nothing to be new, nothing to be any hurdle over on this term. कोई अगर मसला इन दोनों टर्म्स है, you can inform me on your chat box, or if there is no query, nothing to be worried about for that, so you give me the answer कि sir it's okay, clear, or we can go further. So class, if there is any query regarding about the two terms that what we have studied, digestion and respiration. Digestion क्या होता है? मैं फिर से एक दफा ओवरव्यू करना चाहूँ कि conversion, breakdown of complex food into the simple form. हम खाना ले रहे हैं अंदर by means of mouth, तो वहां से फूड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है. माउथ में होता है, इसोफेगस में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते वो फूड इतना ब्रेक डाउन हो जाता है कि इट कैन इजीली मिक्स इनटू द ब्लड, and that blood transport the food to rest part of the body, and that food which is being transported to rest part of the body, it is being real very simple. वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है. Simple, that is the glucose. Why the food have to be simple? ताकि उसको ऑक्सीजन इजिली ब्रेक डाउन करे, and that breakdown of food
by which we can get what, which we can get energy. तो कोई मसला हो इस टॉपिक में, so you can inform me on your chat, and if there is no query about it, कोई मसला नहीं हो तो तुम उन लोग मुझे नो करके या फिर क्लियर करके रिस्पॉन्ड करो चैट में, so that I can go further. Yes class. Taha, Darashna, Haya, okay, that's very great, Haya. Okay, what about Taha, Raiha? Anything you want to ask me, you can ask me on your onto the chat. कोई भी चीज, अभी तो हम किसी चीज पे आए नहीं है, पहली बात ऐसा ऐसा आएंगे तो आगे आज तुम लोग सरफेस, ये जो सरफेस वर्किंग है, जो ऑनलाइन वर्किंग है, इस पे तुम लोग ओके सैयद राय, ओके ऑल क्लियर, थैंक यू सो वेरी मच। ओके तो बेटा आई एम जस्ट रिकनेक्टिंग टू यू क्योंकि 40 मिनट्स हो चुके हैं, रिमेनिंग मेरा जो रिमेनिंग टाइम है वो 4 मिनट्स का है, मतलब मैं आपको क्लास दोबारा से रिज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो न्यू कोड मैं दोबारा से आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप उस न्यू कोड पे मुझे ज्वाइन अप करो, ठीक है। न्यू कोड मैं दोबारा से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे उस पर ज्वाइन अप करो।